Now let us talk about the second type of pathway in the initiation phase. So we are talking about the initiation phase. Now this is the second pathway, which is called the extrinsic pathway. Extrinsic pathway is also called the death receptor initiated pathway. So basically the extrinsic pathway performs its function with the help of the death receptors. Death receptors are basically the receptors which belong to the tumor necrosis factor family. So TNF receptor family has one more subdivision which are called the death receptor pathway, which have a specific cytoplasmic domain called the death domain, which is very important for delivering the apoptotic signals. So we will be discussing about death receptor in the later part of this video. So it is also called the death receptor initiator pathway or initiated pathway. Now I have told you in the very beginning how to make a concept of the extrinsic pathway, intrinsic pathway and the execution phase. So suppose there is a person who want to kill a cell. Okay, this person may be the member of the family, or there might be some other member from the outside which want to kill a cell. So if the member is from within the family, it will basically the intrinsic pathway. If the member is from outside the cell or the family, it is called the extrinsic pathway. So basically both will, in order to kill this cell, both will approach a gang leader, and the gang leader will send one of its member to kill the cell. So this gang leader is basically the initiator caspases, and this member of the gang which is killing this cell are basically the executioner caspases. So initiation caspases and the execution caspases are basically performing the function of the apoptosis. Now let's talk about the extrinsic pathway. So in the extrinsic pathway, the factor or the stimulating factor is coming from outside the cell, while in the intrinsic pathway the factors are present within the cell, which are basically the mitochondrial proteins, and the most important one being the cytochrome C. So the extrinsic pathway is initiated by the engagement of plasma membrane death receptors. So plasma membrane death receptors have a cytoplasmic domain which is called the death domain. So suppose this is the cell membrane. Okay, so this is the cell membrane, this is the outside the cell membrane, and this is the space inside the cell membrane. So death receptor is present somewhat like this. Its some part lies outside as it is basically receptor, and some part lies inside the cell. So the part which lies inside the cell has one domain or special structure called the death domain. So this cytoplasmic part is basically called the death domain, and death domain is very important for delivering the apoptotic signals. So based on the receptors and the signaling molecule, we have basically two pathways in the extrinsic pathway. First one is called the tumor necrosis factor pathway, and second one is called the FAS pathway. अब देखिए मैं बताया था ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर यानी कि TNF रिसेप्टर फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें कुछ मेंबर्स को हम बोलते हैं डेथ रिसेप्टर्स. अब डेथ रिसेप्टर में फर्दर डिवीजन है. अगर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है तो उसे बोलते हैं TNF पाथवे. जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फैस लिगैंड होता है तो उसे बोलते हैं फैस पाथवे. सो बेसिकली सपोज एक सेल है और यहाँ पर हमारे पास डेथ रिसेप्टर है. अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो यहाँ पर स्टिमुलेट करने वाला है इसको, अगर ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है तो इसे बोलेंगे हम TNF पाथवे. अगर ये फैस लिगैंड है तो इसे बोलेंगे हम फैस पाथवे. तो बहुत ही पॉइंट क्लियर रखना है. तो इसमें एक डोमेन होता है जिसे बोलते हैं डेथ डोमेन, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज द TNF अल्फा, it is called the TNF pathway, and if the signaling molecule is a Fas ligand, and it is basically called the Fas pathway. So first of all, let's start with the TNF pathway, that is the tumor necrosis factor pathway. अब TNF pathway में क्या होता है, जो TNF अल्फा मॉलिक्यूल है जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, अब जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत है. अगर वो TNF अल्फा मॉलिक्यूल है तो हम उसे पढ़ेंगे TNF पाथवे के अंदर. ठीक है, और ये अगर फैस लिगैंड है कोई दूसरा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है अदर देन TNF अल्फा विच इज़ कॉल्ड द फैस लिगैंड, उसे हम बोलेंगे फैस पाथवे के अंदर हम पढ़ेंगे उसको. तो जो TNF अल्फा मॉलिक्यूल बाइंड करता है हमारा डेथ रिसेप्टर से, विच इज़ बेसिकली द TNF-R1 रिसेप्टर, टाइप 1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर. आपको बताया डेथ रिसेप्टर बेसिकली किसके अंदर आता है, TNF रिसेप्टर फैमिली के अंदर आता है. तो इसका जो रिसेप्टर हमारा TNF अल्फा को होल्ड करता है, यानी कि TNF अल्फा से स्टिमुलेट होता है, उसे हम बोलते हैं TNF-R1.
TNF-R1 मतलब है टाइप 1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर। सो बेसिकली TNF-R1 को ऐसे सिग्निफाई हम कर रहे हैं, एक पूरा हमारे पास एक रिसेप्टर है जिसमें एक आउटर पार्ट है और इनर पार्ट है, और दैट डोमेन यहाँ पे एक की टाइप का अटैच्ड है। ठीक है, इस बॉक्स में की अटैच्ड है विच इज़ कॉल्ड द SODD, और यू कैन से सॉड, साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन। तो ये इसको ना इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रखता है। ठीक है, डेथ डोमेन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म रखने में कौन हेल्प करता है? SODD। तो याद रखना है, कुछ ऐसा हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसमें एक हुक टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि बाइंड करके TNF अल्फा मॉलिक्यूल से, जो कि हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं डेथ डोमेन, और डेथ डोमेन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रखने में साइलेंस ऑफ डेथ डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर रहता है। ठीक है, जब हमारा TNF अल्फा मॉलिक्यूल इससे बाइंड कर जाता है तो जो हमारी की है हमारी जो उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रखी है TNF अल्फा रिसेप्टर 1 को, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, वो डिसोशिएट हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है हमारा TNF अल्फा मॉलिक्यूल और पूरा ये हमारा जो TNF-R1 रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो बेसिकली कैसे होता है, जो हमारा जब ये TNF अल्फा मॉलिक्यूल से बाइंड करता है देयर इज चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डेथ डोमेन। सो इफ देयर सम चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन डेथ डोमेन, द SODD molecule or the silence of death domain molecule dissociate from the death domain which lead to the activation of death domain। तो बेसिकली आपके एग्ज़ाम में आता है अगर, तो आपको पूरा इसी पाथवे में ऐसा पूरा डिपिक्ट करना है ऐसे। ठीक है, जब हमारा SODD का एक्टिवेट हो जाता है, हमारा डिसोशिएट हो जाने से जो हमारा डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाता है, उससे क्या होता है एक और मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है, इसे बोलते हैं TAD, TNF-R1 associated death domain। ओके, so if there is some dissociation of SODD, it will lead to the activation of TAD, that is the TNF-R1 associated death domain। So with this, TAD will cause the activation of FAD, which is called the Fas associated death domain, and which will lead to the cleavage of the pro-caspase 8, and which will lead to the caspase activation, that's basically the execution of caspases, and which will lead to the cell death। अब इसको डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। सपोज़ ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन से हमारा यहाँ पर TNF-R1 रिसेप्टर अटैच है हमारा। ठीक है, और इसमें जो हमारा जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है इसे बोलते हैं डेथ डोमेन। ठीक, जब हमारा कौन जो मॉलिक्यूल है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट इज़ अ TNF अल्फा रिसेप्टर, TNF अल्फा मॉलिक्यूल इसे बाइंड करता है, तो इसमें कन्फिग्रेशन में चेंज आ जाता है, जिससे जो हमारा SODD था साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन, जो उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रखा था, वो हमारा डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, इससे अलग हो जाता है। इससे क्या होता है एक और मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, TAD, TNF-R1 एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ये एक्टिवेट हो जाता है। TNF-R1 एसोसिएटेड डेथ डोमेन, जब TNF-R1 एसोसिएटेड डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाता है तो एक और मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है जिसे बोलते हैं FAD, दैट इज़ अ फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन। फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन क्या करता है, प्रो-कैस्पेस 8 को एक्टिवेटेड फॉर्म यानी कि कैस्पेस 8 को में कन्वर्ट करता है, कैस्पेस 8। अब कैसे याद रखा जाए कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन सा टाइप का कैस्पेस होता है, तो देखिए EIGST, तो ये है हमारा एक्सटेंसिव पाथवे और ये है इनिशिएटर कैस्पेस। तो कैस्पेस 8 इज़ बेसिकली द इनिशिएटर कैस्पेस ऑफ द एक्सटेंसिव पाथवे, और हमारा इंटेंसिव पाथवे में क्या था, कैस्पेस बेसिकली कैस्पेस 9। सो हमारा इंटेंसिव पाथवे कैस्पेस 9 होता है, और 8 होता है हमारा एक्सटेंसिव पाथवे का इनिशिएटर कैस्पेस, विच लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द अदर कैस्पेस विच आर बेसिकली द एग्जीक्यूशन कैस्पेस। एग्जीक्यूशन कैस्पेस हमारे 3 है, 3, 6 एंड 7, विच लीड टू द सेल डेथ। अब हम देखते हैं फैस पाथवे। अब फैस पाथवे में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। जब ये हमारा TNF पाथवे में क्या था, एक ही सेल था जो कि अपटोसिस में होने वाला था, जाएंगे जिसका सेल डेथ होने वाली थी, और ये बस एक एक्सटर्नल फैक्टर में बस एक मॉलिक्यूल था सेल। बेसिकली यहाँ पर फैस पाथवे में क्या होता है, यहाँ पर 2 टाइप के सेल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सिग्नलिंग सेल, जो कि हमारा एक्सटेंसिव फैक्टर रहेगा, यानी कि जो हमारा नॉर्मल सेल के अलावा जो टारगेट सेल है उसके अलावा एक आउटसाइड से एक सेल स्टिमुलेट करेगी, जिसे हम बोलेंगे सिग्नलिंग सेल। सो सिग्नलिंग सेल जो मोस्ट कॉमन सिग्नलिंग सेल है वो होती है T लिम्फोसाइट। सो साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स आर द मोस्ट कॉमन सिग्नलिंग सेल। इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं, और इन T लिम्फोसाइट्स में एक लिगैंड प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं हम फैस लिगैंड, और इसे कैसे डिपिक्ट करते हैं, फैस सेल विल डिपिक्ट द फैस लिगैंड।
और हमारे जो दूसरी सेल होती है जो एपोप्टोसिस के अंडरगो होने वाली होती है उसे बोलते हैं हम टारगेट सेल। तो टारगेट सेल में एक रिसेप्टर होता है दैट इज कॉल्ड द फैस रिसेप्टर विच विल बाइंड टू द फैस लिगैंड ऑफ द सिग्नलिंग सेल। सो बेसिकली हम वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज कॉल्ड द सिग्नलिंग सेल एंड अदर इज कॉल्ड द टारगेट सेल। सिग्नलिंग सेल है वो बेसिकली क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, और इसमें क्या लिगैंड प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स पे ऐसे लिगैंड प्रेजेंट होता है जो कि रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, जो कि हमारा टारगेट सेल पे प्रेजेंट है। इनके बाइंड करने से एक सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है विच विल लीड टू द सेल डेथ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फैस पाथवे। सो बाइंडिंग ऑफ द फैस लिगैंड टू द मॉलिक्यूल ऑफ फैस रिसेप्टर। सो जो हमारा फैस लिगैंड है जो कि हमारा टी लिम्फोसाइट में प्रेजेंट है, जब वो किसी एक फैस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो क्या होता है, 2-3 मॉलिक्यूल फैस के पास आ जाते हैं। यानी कि सपोज एक सेल मेम्ब्रेन पे ऐसे 3D में क्या होगा, आगे पीछे प्रेजेंट होंगे, ऐसे आगे पीछे प्रेजेंट होंगे। पर मैं लाइन में शो करना था तो मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन में शो किया हुआ है, ठीक है। आगे पीछे प्रेजेंट है तो उसमें 3 पार्ट्स होंगे। जो हमारा ये हमारा आउटसाइड 3 से 4 पार्ट होते हैं हमारा लिगैंड में, तो जो कि 3 से 4 रिसेप्टर में बाइंड कर सकता है। सो बाइंडिंग ऑफ द फैस लिगैंड टू ए मॉलिक्यूल ऑफ फैस रिसेप्टर विल कॉज द 2 to 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैस टू कम टुगेदर। तो रिसेप्टर हैं ये पास आने लगेंगे और फिर ये जो बाकी जो हमारे बाइंडिंग पॉइंट्स हैं उससे बाइंड कर जाता है। सो बाइंडिंग ऑफ फैस लिगैंड टू मॉलिक्यूल ऑफ फैस रिसेप्टर विच कॉज द 2 to 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैस टू कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बाइंडिंग साइट फॉर ए अडेप्टर प्रोटीन कॉल्ड फैड, फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन, जो कि हमने TNF पाथवे में पढ़ा था, ठीक है। जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में ऐसे 3-4 बाइंडिंग साइट होते हैं, पर वो पहले किसी एक से बाइंड करता है। जब वो किसी एक से बाइंड करता है तो आसपास के रिसेप्टर्स भी पास आ जाते हैं और इससे बाकी जगह जो बाइंडिंग साइट थी उससे बाइंड कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमको साइटोप्लाज्मिक पार्ट था ये पास में आ जाता है और एक प्रोटीन से बाइंड करने लायक इसमें एक रिसेप्टर बन जाता है, ठीक है। बाइंडिंग साइट बन जाती है जिसे बोलते हैं फैड। तो फैड इज़ द बेसिकली फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन। जब फैस इसमें बाइंड कर जाता है तो क्या करता है, इनएक्टिवेटेड कैस्पेस 8 को यानी कि प्रो कैस्पेस 8 या 10 को एक्टिवेटेड कैस्पेस 8 या 10 में कन्वर्ट कर देता है। सो बेसिकली विल कॉज द एक्टिवेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन कैस्पेस विच विल फाइनली कॉज द सेल डेथ, ठीक है। तो हमारा पहले एक मॉलिक्यूल से फैस लिगैंड बाइंड करता है, उससे क्या होता है आपस के 2 और 3 मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं और वो एक बाइंडिंग साइट बना लेते हैं साइटोप्लाज्म में, किसके लिए, फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन के लिए। तो फैट अटैचमेंट टू दिस कॉम्प्लेक्स विल कॉज द एक्टिवेशन ऑफ द प्रो कैस्पेस 8 and 10 विच विल कॉज द एक्टिवेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन कैस्पेस विच फाइनली लीड टू द सेल डेथ। तो हमने देख लिया कि इनिशिएशन फेज में जो दो रास्ते थे हमारे पास, इंटेंसिव पाथवे, एक्सटेंसिव पाथवे, वो दोनों एक कॉमन पाथवे में आके मिल रहे हैं, जिससे हम बोल रहे हैं कि दैट इज बेसिकली द एक्टिवेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन कैस्पेस। अब एग्जीक्यूशन कैस्पेस कैसे सेल डेथ करते हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन फेज, दैट इज द सेकंड फेज इन एपोप्टोसिस। तो हमारे 2 पाथवे थे, इंटेंसिव पाथवे और एक्सटेंसिव पाथवे। इंटेंसिव पाथवे क्या होता था, जो इनिशिएशन कैस्पेस था वो था कैस्पेस 9 और हमारा एक्सटेंसिव पाथवे में जो इनिशिएशन कैस्पेस था वो था कैस्पेस 8 या 10। बोथ कम टू ए कॉमन पॉइंट दैट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ द एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस विच आर बेसिकली 3, 6 और 7। सो ये जो एक्टिवेट होते हैं कैस्पेस, ये बेसिकली स्टिमुलेट्स द प्रोटीएजेस दैट इज़ द प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम्स एंड द एंडोन्यूक्लियसेस that is the DNA and the RNA degrading enzymes. So basically degradation of the proteins and the degradation of the nuclear material will lead to the cell death. So once activated, they break the inhibitor of the DNAs. Formation of the execution caspase will lead to the activation of the DNAs. So DNAs will cause the DNA degradation which will lead to the cell death, as the cell will lose the control over its functions, and moreover they also proteolyze or degrade the structural proteins and the nuclear matrix and promote the fragmentation of the nuclei. So they also proteolyze structural proteins and the nuclear matrix and also promote the fragmentation of the nuclei. So as the cell will lose control over its function
and it will not able to maintain its internal environment, it will undergo cell death. So this is basically the function of the execution phase of the apoptosis. So this is basically what happens in the execution phase. If you like the video, please hit the like button and do subscribe to our channel. Thanks for watching.